सत्र प्रारंभ करने से पहले मैं सर का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। आपने संस्कृत और मानव भाषा के विकास पर उत्कल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। आपने 1995 से 2021 तक श्री अरविंदो फाउंडेशन फॉर इंडियन कल्चर और पंडुचेरी के निर्देशक के रूप में कार्य किया है। आपने अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रतिभाग किया है तथा अपने व्याख्यान दिए हैं। आपको अनेक सम्मान प्राप्त हैं, जैसे संस्कृत में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार, जो आपको 2011 में मिला है। 2014 में संस्कृत मंत्रालय ऑफ इंडिया द्वारा वैदिक आर्ट ऑफ मल्टीपल कंस्ट्रक्शन पर शोध करने के लिए सीनियर फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। 2017 में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल इंडिया ने संस्कृत भाषा और साहित्य में आपके योगदान के लिए साहित्यिक उत्कृष्टता पुरस्कार से आपको सम्मानित किया है। आपको अ बुक ऑफ राइमिंग सॉन्ग्स इन संस्कृत फॉर चिल्ड्रन के लिए केंद्र साहित्य अकादमिक बाल पुरस्कार का सम्मान मिला है और 2020 में रीथिंक इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रिकॉग्निशन ऑफ री इंजीनियरिंग इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है। सर, आपको अपने मध्य पाकर हम बहुत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। आज जो सर का विषय है जिसमें सर अपना व्याख्यान देंगे वो है एन इंट्रोडक्शन टू वैदिक साइकोलॉजी। ओवर टू यू सर। Grateful to the Teaching Learning Center and Professor Amita Pandey ji for the invitation. And the topic that I've selected today for this, keeping the broad theme of this FDP, is Vedic psychology. So when we are talking about psychology, the question comes up, usually it is the Western psychology which is taught everywhere. Is there Indian psychology? Yes, there are plenty of materials which are available in the name of Indian psychology. भारतीय मनोविज्ञान के नाम पर आपको काफी कुछ सामग्रियां प्राप्त इधर उधर हो सकते हैं, और वास्तविक रूप में देखा जाए तो the actual psychology, the Vedas, the Upanishads, the Gita, the philosophical texts, the texts on Tantra, they are so full of psychological components. And today I will be discussing, because it's a really, really vast topic, the Vedic psychology. And I will be contemplating on few aspects of it, like how it helps understanding ourselves, understanding others. One thing that we all should know, that the entire gamut of literature that we have in Sanskrit, starting from the Veda till the modern Sanskrit, every text here is known or is regarded as a moksha shastra. Now, you may be thinking that why moksha shastra, and then what connection it has with psychology. So here we have mathematics, physics, chemistry, biology, every scientific text, but every text is rooted or is centered around this whole idea of knowing oneself. That's the key to all psychological components in the Shastras, knowing oneself. Atmajnana. Atmanam vidhi. Atma va are drashtavya, shrotavya, mantavya, nididhyasitavya. This is at the basis of all psychological knowledge. So, the most fundamental psychological experience of our being, therefore, when we turn especially to the Upanishads, which are so full of psychological components,
So the most fundamental psychological experience that we have is our being, the psychological experience of our being is the sense of I am, that I exist. If we need to explain this, that I exist and I'm aware of my existence, this is at the basis, this is most fundamental psychological experience of our being, that I am, aham asmi, and I exist and I'm aware of my existence. So what is the ultimate inner source of this experience? Like, why do I feel that I exist and I'm aware of my experience? What is the source? Where from this experience is coming? And you turn to any Upanishad. So the answer given to it is Sat, Chit, and Ananda. The pure existence, Sat, the pure Chit, the consciousness, and the pure bliss, Ananda. ये सब कुछ के मूल में सच्चिदानंद ही है। हमें जीवन में क्या करना है, हमें जीवन में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि हमें हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को उपलब्ध करना है। We need to realize the Sat Chit Ananda Swarupa of ours. And according to the Upanishad, this Sat Chit Ananda, though there are three different terms and referring to three different states, Sat referring to our being, Chit referring to consciousness, Ananda referring to bliss, yet these three are inseparable attributes of one single, indivisible, absolute Brahman, who is at the source of existence. जिस ब्रह्मन, जिस परमात्मा ने ये संसार की सृष्टि किया है, वह परमात्मा का, परब्रह्म का ये तीन स्वरूप है, सत, चित और आनंद। और ये शुद्ध रूप में उस परमात्मा में रहते हैं। और सत, चित, आनंद जो है, तीन अलग अलग होने पर भी ये एक है। सत में चित और आनंद, चित में सत और आनंद, और आनंद में सत और चित। तो ये तीनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये जो एब्सोल्यूट ब्रह्मन है, एब्सोल्यूट ब्रह्मन के ये इनसेपरेबल थ्री एट्रीब्यूट्स हैं। जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है, जो पहला गुण है, सत, जिसका अर्थ है बीनेस, इजनेस, मैं हूं, होना। सो इजनेस ऑफ व्हाट? इजनेस ऑफ ऑल दैट इज, जो कुछ भी इस संसार में है, तो वह सब कुछ सत है। सत इज दैट बाय विच एवरीथिंग एग्जिस्ट्स। And when I say I am, Sat is ultimate source of that amness. कि मैं हूं, इसका जो मूल है वह सत है। And it is the essential, immutable, indivisible substance of which all existence is made. Why I am discussing here? In order to understand oneself, in order to understand the different aspects of psychology, it is necessary to know how this world is created, what is the source of ours. And the Vedic psychology, whether you turn to the real Vedic text, Vedic संहिता को हम अगर पढ़े या उपनिषदों को पढ़े, हम गीता को पढ़े, तो वो सबके मूल में है कि हम ये जाने कि ये सृष्टि कैसे बनी है। तो ये सृष्टि की जो हिस्सा है, जो कुछ भी अंश है, वो सब में किन उपादानों को लेकर इस सृष्टि में सब कुछ को बनाया गया है, यह ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है
अगर हमें खुद को जानना है, इस जगत को जानना है और हमारा जगत के साथ क्या संबंध है और किस संबंध के साथ हमें एक दूसरे के साथ रहना है, इस जगत में रहना है और आगे बढ़ना है, हमारा एवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए श्रेय के मार्ग पर चलना है, ये सब जानना साइकोलॉजी, वैदिक साइकोलॉजी का एक अभिन्न अंग था. इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन seers and sages. The second attribute, it is the first attribute is सत. सेकेंड एट्रीब्यूट जो दूसरा गुण है वह चित है, कॉन्शियसनेस है, which is not the limited ignorant human consciousness. A human consciousness can be one aspect of the pure consciousness. So if we look at our shastras, the consciousness itself, जो चेतना जिसे हम कहते हैं, और हमारे मुनि ऋषियों की यह उपलब्धि है कि इस संसार में, इस जगत में अचैतन्य कुछ भी नहीं है, चेतना रहित कुछ भी नहीं है. कहते हैं कि अचैतन्यम न विद्यते. तो आज के विज्ञान भी इसी को मानता है कि हर चीज में चेतना है, कॉन्शियसनेस है. तो ये कॉन्शियसनेस को, ये चेतना को हमारे मुनि ऋषियों ने 5 भाग में बांटा है. 5 भाग में जो जड़ वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुओं में भी चेतना है, क्योंकि वो कहते हैं कि अचैतन्यम न विद्यते या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्यभिधीयते. जिन देवी को हम चेतना के रूप में, हर वस्तु में चेतना के रूप में विद्यमान देवी को हम प्रणाम करते हैं, तो ये अर्थ होता है. तो जड़ वस्तुओं की जो चेतना है, जो चेतना जड़ वस्तुओं में है, वह चेतना है संकुचित चेतना, संकुचित चेतना. और चेतना के ये हर स्तर को जानना आत्मज्ञान के लिए, जगत ज्ञान के लिए और ब्रह्म ज्ञान के लिए यह आवश्यक है. और यही हमारी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है. हम खुद को और इस जगत को पूरी तरह से, इस चेतना को पूरी तरह से हम जाने. तो संकुचित चेतना है, जो जड़ वस्तुओं में जो चेतना है, ये संकुचित चेतना में कोई विकास की संभावनाएं नहीं है. उसका विकास हो सकता है पर इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स. फिर हम प्राणियों में, पेड़ पौधों में जो चेतना को हम पाते हैं, चेतना जिस रूप में उपस्थित है, वह चेतना है आच्छादित चेतना, कवर्ड कॉन्शियसनेस. उसमें जैसे हम कहते हैं कि महाभारत में आप जाओ, पुराण में जाओ, आयुर्वेद शास्त्र में जाओ, तो उसमें जो आच्छादित चेतना है प्राणियों में, पेड़ पौधों में भी, जैसे हमारे अंदर इंद्रियां काम करते हैं, हमारे अंदर इमोशंस है, प्राणियों में, पेड़ पौधों में भी ये इंद्रियों की शक्ति भी काम करती है और इनमें भी इमोशंस रहते हैं. पर विकास की जो संभावना मानव चेतना में है, वह संभावना है ये आच्छादित चेतना में नहीं है, पेड़ पौधों में नहीं है, एनिमल्स की जो चेतना है उसमें नहीं है. पर कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो थोड़े से विकासशील होते हैं, पर वो बहुत ही रेयर है. इन दोनों के ऊपर, संकुचित चेतना, आच्छादित चेतना के ऊपर जो मानव चेतना है, वह चेतना, उसको 3 रूप में वर्णन किया गया है. मानव का जो मूल चेतना है, मानव चेतना, वह है मुकुलित चेतना. मुकुलित, मुकुलित मतलब फूलों की जो कली है उसको मुकुल कहते हैं. मुकुल, बर्ड, बडिंग कॉन्शियसनेस. जो फूलों की कली है तो उसमें विकास की अनंत संभावनाएं हैं, वो विकसित हो सकता है. जैसे कली पुष्प बनता है, पूर्ण रूप से उसका विकास हो पाता है. तो ये विकसित जो मुकुलित चेतना आगे चलकर अपने विकास के पथ पर, क्योंकि विकास की अनंत संभावनाएं हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ एवोल्यूशन
इन द मैन्स कॉन्शियसनेस, फिर वो विकसित चेतना बनती है। तो मुकुलित से हमें बनना क्या है? विकसित चेतना। उसके ऊपर भी पूर्ण विकसित चेतना है, जहां पर हम पूर्ण रूप से हमारे मूल स्रोत के साथ हम एकाकार हो जाते हैं। तो ये जो चेतना का जो वर्णन है हमारे वेदांत शास्त्रों में, इसी प्रकार हम देखते हैं कि मानव की चेतना जो है उसको जिस प्रकार वेदों में, उपनिषदों में, हमारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स में, दर्शन शास्त्रों में जिस प्रकार उसका विभिन्न उपादानों को वर्णन किया गया है, वो सब हम अगर विचार में ले तो हमें जो साइकोलॉजी, वास्तविक रूप से साइकोलॉजी का जो प्रारूप होना चाहिए, जो विषय होना चाहिए, तो वो हमको बहुत ही स्पष्ट रूप में, बहुत ही एक व्यवस्थित रूप में हमको इन टेक्स्ट्स में ये सब मिलता है। जो सेकंड कंपोनेंट है, जो चित्त की बात हम करते हैं, सत चित आनंद में, चित्त जो कॉन्शियसनेस है, इट्स नॉट लिमिटेड टू द इग्नोरेंट ह्यूमन कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो जो 5 चेतना के जो प्रारूप को मैंने वर्णन किया अभी, संकुचित, आच्छादित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित, तो इसमें ये चित्त जो है ये सब कुछ को लेके जाता है। कोई एक उपादान को, एक चेतना के एक विभाग को नहीं लेके जाता है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, बिकॉज़ द कॉन्शियसनेस एज ए होल, इट टेक्स ऑल द 5 stages. So then what happens? That this infinite consciousness, the chit, is beyond mind, beyond the eternal self-awareness by which it knows itself and all exists within itself. That is the chit at the highest level. And also, when we are talking about the Sat, Chit, Ananda, and in that context, the Chit. So if Sat is by that which we exist, Chit is by which we are conscious of ourselves. So Sat, यही हमको उपलब्धि हमारी होती है सत से कि हम है। तो हम है का ये जो ज्ञान है, ये जो सचेतन होने का है, ये चित्त का विषय है। और सत चित्त is the inner source of I am. This experience that I am, ये जो अनुभव होता है, ये जो उपलब्धि होती है कि I am, मैं हूँ, ये सत चित्त दोनों ये इसका inner source है। And our human mind is only a partial and limited expression of चित्त। बहुत ही एक छोटा सा अंश है, या छोटी सी अभिव्यक्ति है चित्त का, ह्यूमन माइंड। एंड दिस इटर्नल कॉन्शियसनेस, द चित्त, इज नॉट ओनली अवेयरनेस, ये केवल सजगता नहीं है, बट ऑल्सो एनर्जी इनहेरेंट इन इट, जिसको उपनिषदों में कहा गया है चित्त शक्ति। चित्त शक्ति तो दर्शन शास्त्र में, गीता में, उपनिषदों में को चित्त शक्ति के रूप में जाना जाता है, which is the source of all energy. And when we say all energy, it is the physical, vital, mental, spiritual, all kinds of energy, not just in the individual but also in the universe. So therefore chit is not confined to human being, but it is the divine source of everything that has manifest in this universe. Everything that has manifest in this universe. Plant, animal, in various forms, evolving, manifesting more and more of its potentialities. So this is the power of the chit, that is constantly manifesting in different forms. And the third attribute, the ananda, the bliss, the eternal delight,
जो आनंद सब में है, जो रस सब में है, इसलिए ब्रह्म को, परमात्मा को कहा जाता है कि रसो वैसा, रसो वैसा। वह वो आनंद है, वह रस है। हर चीज में जो रस है, जो आनंद है, वही परमात्मा है। And again, we should note that Sat, Chit, Ananda, as I mentioned in the beginning, that they are not three distinct or separate attributes. They are inseparable. They are not separated from each other. ये एक और अखंड है, एक और अखंड है। सच्चित आनंद, they are inseparable triune nature of the Brahman. The Brahman is Sat, Sat is Chit, Chit is Shakti, Shakti is Ananda. So they are inseparable triune of the Supreme Brahman. और ये सच्चिदानंद is our eternal source. We come from there, and our whole purpose of लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इस जगत में रहने का, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है उस सच्चिदानंद स्वरूप को जानना और उस सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होना। और इसके लिए जो उपनिषदों में, हमारे दर्शन शास्त्र में, वेदों में जो कहा गया है, जिसको हम कहेंगे कि ये जो इंडियन साइकोलॉजी का ये सोर्स मटेरियल है, तो इसी प्रकार है कि इसको नाम दिया गया है ब्रह्म विद्या। अगर साइकोलॉजी का कोई दूसरा नाम हो सकता है, वो है ब्रह्म विद्या। ये ब्रह्म विद्या का क्या अर्थ है? ब्रह्म विद्या का अर्थ है आत्मज्ञान, जगत ज्ञान और देव ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। हम खुद को जानना है, इस जगत को जानना है, और हम मतलब इस जगत का और हमारा जो सोर्स है, जो ब्रह्म है, उनको जानना है। और इन तीनों में जो संबंध है, उस संबंध को भी जानना है। तो ये तीन है ब्रह्म विद्या का विषय, और इस ब्रह्म विद्या के अंतर्गत ही सारे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स आते हैं। तो इसलिए गहराई से उपनिषदों को पढ़ना और गहराई से जिस आत्मज्ञान को, क्योंकि सबके मूल में ही आत्मज्ञान है। हम सब कुछ तो पढ़ लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, पर हम खुद को नहीं जान पाते हैं। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे भीतर कौन कौन से ऐसे तत्व है जो सक्रिय, उसको हम नहीं जान पाते। जब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे, हमसे जो अलग है उनको भी नहीं जान पाएंगे, और इस जिस जगत में हम रह रहे हैं, इस जगत को भी नहीं जान पाएंगे। तो इंडियन साइकोलॉजी का एक जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य सिर्फ खुद को जानना नहीं, और खुद का जो आत्मज्ञान होता है उसके माध्यम से पूरे जगत को जानना है। और ये जो साइकोलॉजी दिया गया है, इसको फिर समझने के लिए हमको क्या जानना है कि जो जैसे वेद में कहा गया है, पूरी जगत का निर्माण जो हुआ है, पूरी सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, इस सृष्टि के जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों को जानना है। और अलग अलग रूप से इन तत्वों को हमारे विभिन्न दर्शन शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से, विभिन्न मार्ग से समझाया गया है। जब हम इंडियन साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी सिर्फ एक मनोविज्ञान नहीं है, साइकोलॉजी मन तक सीमित नहीं है। मन एक बहुत ही सीमित छोटा सा अंश है पूरी चेतना का। और इंडियन साइकोलॉजी का अर्थ ये है कि इंडियन साइकोलॉजी में जिसको जोर दिया गया है, यह है चेतना का विकास, आत्मा का विकास। और इस आत्मा को जानना, इस चेतना के हर विभाग को जानना और व्यापक रूप से जानना, और केवल पिंड में जो चेतना है उसकी बात नहीं है। जैसे हमारा मन है, इसी प्रकार पूरे यूनिवर्स का भी एक मन है, जो यूनिवर्सल माइंड है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है। जैसे हमारा प्राण है, पूरे विश्व का भी एक प्राण है। जैसे हमारा शरीर है, जैसे विश्व का भी एक शरीर है, एक फिजिकल बीइंग है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, और यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे।
तो जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह सब कुछ पिंड में ही है। ये जो माइक्रोकॉस्म और माक्रोकॉस्म, जो माइक्रोकॉस्म में है वो माक्रोकॉस्म में है। तो ये पिंड ब्रह्मांड संबंध को हमें जानना है, और पिंड जिन तत्वों को लेकर, जिन तत्वों के आधार पर ब्रह्मांड बनी है, उन्हीं तत्वों से ही पिंड बना है, या जिन तत्वों से पिंड बना है वही तत्व हमको ब्रह्मांड के निर्माण में भी पाया जाता है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द वैदिक कॉस्मोलॉजी, man and cosmos are equal powers of that one transcendent, universal, indivisible, absolute, one without second Brahman. And man is a microcosm of the macrocosm. बहुत ही छोटा सा अंश है उस व्यापक ब्रह्म का। And the principles which constitute the individual man is the same as that constitute the cosmic nature. इसलिए पिंड में जो है ब्रह्मांड में वही है। जिन तत्वों के आधार पर और जिन तत्वों को लेकर, जिन उपादानों को लेकर इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उन्हीं उपादानों से फिर ये व्यक्ति का या पिंड का निर्माण हुआ है। So whatever is there in the man, whatever in man is it derives their energy and substance and law of functioning from the corresponding planes of cosmic nature. तो कॉस्मिक नेचर में जो अलग अलग स्तर है, उन्हीं स्तरों से तो मनुष्य अपनी जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो पोटेंशियलिटी है और जो कुछ आवश्यक है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको संचालन के लिए, वो सब उन्हीं उच्च स्तर की जो ब्रह्मांड में जो लोक है, विभिन्न लोक है, विभिन्न स्तर है, उन स्तरों से, उस करेस्पॉन्डिंग लोक से अपनी एनर्जी को वो ग्रहण करता है, फिर आगे बढ़ता है। सो the cosmos of which we are a part as per the Vedic cosmology, और ये जानना जरूरी है अगर हम एंशिएंट इंडियन मुनि ऋषि, जो प्राचीन भारतीय मुनि ऋषियों ने जो साइकोलॉजी हमको दिया है, तो जिस तरीके से दिया है, उसको समझने के लिए हम ये वैदिक कॉस्मोलॉजी को जानना बहुत आवश्यक है। तो वेद में क्या कहते हैं? वेद ये कहता है कि जो कॉस्मस, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, जो बना है, जिसका हम एक इनसेपरेबल, एक अभिन्न अंश है, तो ये 7 principles organized in the form of 7 planes or worlds or lokas of the creative cosmic energy of the divine being, उस परम ब्रह्म का जो क्रिएटिव कॉस्मिक एनर्जी है, उससे ये 7 लोक बने हैं, 7 लोक, 7 स्तर बने हैं, 7 planes of our existence. So each level has its own system of laws, its beings, its worlds, its forces. तो ये 7 क्या है? तो ये 7 को समझने से पहले हम ये देखें कि वेद में पूरी की पूरी हमारी जो सत्ता है, जो चेतना का जो अखंड चेतना जो रूप लिया है, तो उसका 7 स्तर पहले हम समझे। हम ये भी जाने कि ये समग्र सृष्टि को 2 भाग में बांटा गया है। एक है अपरार्ध और एक है परार्थ। अपरार्ध और परार्थ। ये अपरार्थ जो है, अपरार्ध में मन, प्राण और शरीर ये क्रियान्वित है। द फिजिकल, द वाइटल एंड द मेंटल, दिस इज द लोअर हाफ, इसको अपरार्ध कहते हैं। एंड द हायर हाफ, सो ये 3 स्तर हुए, नीचे से ऊपर की ओर ये 3 स्तर हुए हैं, शरीर, प्राण और मन। और फिर जो परार्ध है, परार्ध में जिसकी चर्चा हमने शुरू से की कि सत, चित और आनंद, ये परार्ध उसको कंस्टिट्यूट करता है। और अपरार्ध जो है
वो हर प्रकार से सीमित है, हर प्रकार से सीमित है। क्यों? जो ब्रह्म, जो परमात्मा असीम है, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, एंडलेस, आदि मध्यांत रहित जो है, सो इट फाइनाइट्स इटसेल्फ, इट लिमिट्स इटसेल्फ फॉर द क्रिएशन। एक लिमिटिंग मैकेनिज्म को यूज करके वो इनफाइनाइट जो है, जो अनंत है, वो शांत बनते हैं, जो असीम है वो ससीम बनते हैं। तो ये जो ससीमता, ये अपरार्ध में पाया जाता है, क्योंकि अपरार्ध ससीम है, लिमिटेड है, तो वो असीम को इतने सहजता से, सरलता से वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये ससीमता से फिर असीम बनना, ये हमारे एवोल्यूशनरी जर्नी है। ससीम से असीम बनना, जैसे असीम ससीम बने हैं, जो इनफाइनाइट फाइनाइट बने हैं, फिर फाइनाइट को फिर इनफाइनाइट बनना है, जो यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना की जो अखंडता है, जो एकत्व है, जो समत्व है, ये एकत्व और समत्व रहित होता है अपरार्थ में हमारा मन, प्राण, शरीर, इसलिए बहुत ही सीमित है, बंधा हुआ है। उस सीमितता से खुद को मुक्त करना, ये मोक्ष है। इस सीमितता से हमें मुक्त करना है। शरीर को अपनी सीमितता से मुक्त करना है, प्राण को अपनी सीमितता से मुक्त करना है, मन को अपनी सीमितता से मुक्त करना है। और कैसे होएगा? जब हम सच्चित आनंद में जो शुद्धता है और सच्चित आनंद के जो गुण है, उन गुणों को जब हम इस अपरार्थ में अभिव्यक्त करने का प्रयास करेंगे और अभिव्यक्त कर पाएंगे, तब हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को हम धीरे 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 हम समझ पाएंगे, और हमारे जो अपरार्थ की जो सत्ता है, उन सत्ता में हम उसका अभिव्यक्त कर पाएंगे। और ये जो अपरार्थ और परार्थ को जोड़ने वाला एक मध्य, एक लिंक वर्ल्ड है, एक लिंक कंपोनेंट जो है, वो है जिसको कहते हैं विज्ञानमय जगत। जो एक शरीर, प्राण, मन और ऊपर परार्थ में रहा सच्चिदानंद, और अपरार्थ और परार्थ को जोड़ने वाला जो लिंक है, वह है विज्ञान। और इसी के आधार पर उपनिषदों में हमको जो पंचकोश की जो व्यवस्था है, पंचकोश रूपी जो तत्व है, उसका जो वर्णन है तैत्तिरीय उपनिषद में, कि हमारे अन्नमय कोश, हमारे प्राणमय कोश, हमारे मनोमय कोश, हमारे विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश। यहाँ पे 5 क्यों दिखते हैं, जबकि है तो 7? 5 क्यों दिखते हैं? 5 इसलिए कि जो आनंदमय कोश है, वो आनंद में सत और चित्त इंक्लूडेड है, वो उसी के साथ है, क्योंकि उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और विज्ञानमय कोश, ये जो पंचकोश की जो व्यवस्था हम देखते हैं उपनिषदों में, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये कैसे बना है, शरीर कैसे बना है, प्राण कैसे बना है, और मन कैसे बना है, और ये जो अन्नमय कोश की बात करते हैं, जो फिजिकल शीत की हम बात करते हैं, जो वाइटल शीत की हम बात करते हैं, प्राणमय कोश की बात करते हैं, जो मनोमय और मेंटल शीत की हम बात करते हैं, ये कैसे बने हैं और ये तत्व क्या है, ये ज्ञान को अगर हम थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, तब हमको ये समझ में आएगा कि हमारे प्राचीन मुनि ऋषियों ने किस प्रकार के साइकोलॉजी की बात करते थे। तो जब हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत हम इसके बारे में चर्चा करते हैं संक्षेप में, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आगे चलकर आपको अगर कुछ प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। तो अगले जो 15 मिनट तक मैं आपको थोड़ा सा ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, विज्ञान और आनंदमय कोश के बारे में एक जो व्यावहारिक ज्ञान है, तो वो व्यावहारिक ज्ञान में के बारे में मैं थोड़ा बात करता हूँ। तो ये जो फिजिकल शीत है, अन्नमय कोश है, this is the basis of our physical existence, our body, the annamaya kosha, the food sheath, and say the food or anna
इन द एंशियंट एंड सिंबलिक इमेज, उसको एक प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया गया है, जो कि है कि ये हमारे, it is not, though it presents our physical and biological matter, but in the human being it is the body sustained by the food. At the cosmic level, it is the physical and biological aspect of the universe. But at the individual human being, it is the body which is sustained by food. So body is also matter, body is also anna, the physical matter, which is sustained by food. Then what is the essential nature of our body? हमारे शरीर का जो वास्तविक गुण है, स्वभाव है, वो क्या है? Is it merely a bundle of molecular biology, or is there something more to it? और ये हम जब बात करते हैं साइकोलॉजी की, हमारे वेद उपनिषदों में जो पाया जाता है, हमारे दर्शन शास्त्रों में जो पाया जाता है, it is not only related to our psychological being, a mental being alone, because it's an integral psychology which includes everything, because our physical and vital is not separated from our mental, rather it is regulated by our mental psychological being. In order to understand the psychological makeup of ours, it is also necessary that what impact, to know that what impact it has, how it regulates our mental, our vital and physical being. So, therefore, in the when we turn to the Upanishad to find out how did they regard this physical being, is that it's not a bundle of matter, bundle of molecular biology, but there is something more to it. So how have they answered this question? उनके मन में क्या था, किस प्रकार उसको देखते थे? That it says that matter, इसको समझने के लिए फिर और भी गहराई से जाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा मैटर एंड एनर्जी, जो आइडिया ऑफ मैटर एंड एनर्जी हमारे मुनि ऋषियों का था. सो एंशिएंट टीचिंग में, जो वेद उपनिषद में हम जब जाते हैं, सो वो यही कहते हैं कि द सोर्स ऑफ फिजिकल एंड वाइटल लाइफ, द सोर्स ऑफ ऑल फिजिकल, what is that source of all physical and vital or life? Energy in man and the universe. So it is the prana. It is the prana. So this prana in the universe, in the Brahmanda, is the great universal energy of life. एक वैश्व प्राण है जो समस्त शक्तियों का उत्स है, समस्त शक्तियों का मूल है. उसके बिना कुछ आगे नहीं बढ़, कुछ हिल भी नहीं पाएगा, कुछ हिल नहीं पाएगा. तो ये जो प्राण है, which is at the source of everything, and it is that which creates and sustains the physical universe. प्राण के बिना शरीर की कोई स्थिति नहीं है. और हमारे जो पिंड में, माइक्रोकॉस्म में, it is the vital energy that drives our physical being, animates it, animates also the psychological being. क्योंकि मन अगर प्राण के साथ युक्त नहीं होता है, तो मन प्राण के बिना फंक्शनल नहीं है. हमारी इंद्रियां प्राण के बिना फंक्शनल नहीं होते हैं. सो देयरफॉर जब हम प्राणमय पुरुष की बात करते हैं, तो वो किसे कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, जो जड़ है, जो मैटर है, इसका स्पिरिट क्या है? ईथर है, तो आकाश है. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन दैट द उपनिषद गिव्स, दैट ये पृथ्वी का जो स्पिरिट है, ईथर उसका स्पिरिट है. एंड पृथ्वी जो है वो स्पिरिट का आधार है, बेस है. The matter or the physical universe
is the result of the vibration of prana. तंत्र इसको नाम देता है स्पंद, स्पंद, vibration. So the matter of the physical universe is the result of the vibration of a prana, of the life energy. Where does it vibrate? In the ether, in the akasha. And the various forms of matter, like you have Prithvi, Chiti, Up, Teja, Marut, Vyoma, Agni, all these are different modes of interaction of the vibration of prana in आकाश. तो प्राण का जो स्पंदन होता है आकाश में, तो उसी का रिजल्ट होते हैं ये जो पंच महाभूत हैं. तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो फिजिकल बीइंग है, आवर बॉडी is also an expression of the essential pranic energy. And ओजस और तेजस एक दो बहुत ही इंपोर्टेंट वर्ड है. जैसे हम वेद में, उपनिषद में और दर्शन शास्त्र में हम जाते हैं, गीता में जाते हैं, ऐसे बहुत प्रकार के टर्मिनोलॉजी हमें मिलेंगे जो सीधा सीधा हमारे साइकोलॉजी के साथ जुड़े होंगे, जिसका सीधा संबंध है हमारे साइकोलॉजी के साथ. ये ओजस क्या है? ये ओजस भी एक प्रकार के जो एनर्जी है विच इज इनहेरेंट इन द एथेरिक स्पेस. तो ये स्पेस क्या है? Space, again, when we turn to the our philosophical text, जब हमारे दर्शन शास्त्र की ओर हम जाते हैं और पढ़ते हैं, तो it is again an extension of the consciousness, extension of the consciousness. And to अगर उसको बहुत ही संक्षेप से हम बताना चाहेंगे, बहुत प्रिसाइजली उसको बताना चाहेंगे, ये है कि जो it is the conscious substance of the being. It is the conscious substance of the being. ये जो आकाश है, जो स्पेस है, इसको ख कहते हैं. ख का मतलब है एक एक्सपांशन. ये एक्सपांशन में ये सारे जो प्राण है, मन है, शरीर है, ये सब स्पंदित होते हैं. तो इसी प्रकार जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, हमारे फिजिकल बीइंग की बात करते हैं, तो this human body is not merely matter of physics and biology, but a living and intelligent entity with a psychology of its own. बॉडी का भी अपना साइकोलॉजी है. But these are the things which are yet to be explored on the basis of the experiences and the realizations of the rishis of the past. तो इसी प्रकार अन्नमय कोश के बाद जब हम प्राणमय कोश की ओर आते हैं, तो वो प्राणमय कोश में हम देखते हैं, वो हायरार्की में प्राणमय कोश अन्नमय कोश के बाद आता है कि इट इज द सेल्फ ऑफ लाइफ. और वेदांतिक साइकोलॉजी में दिस लाइफ फोर्स इज कॉल्ड प्राण. और प्रश्न उपनिषद है, जब हम प्रश्न उपनिषद में बहुत प्राण की बात कही गई है, और वही में इसमें यही कहा जाता है कि सर्वम प्राणे प्रतिष्ठितम, सर्वम प्राणे प्रतिष्ठितम. प्राण इज ब्रह्मन, एवरीथिंग इज फाउंडेड इन प्राण. एंड प्राण, when we turn again to the Upanishads and the Vedas, we will see, and maximum description of that we find in the Upanishads. So as per this Indian conception, this life force is the prana is the life force which animates both our physical and psychological being in our body, our mind, our senses. So the pranamaya kosha is the seat of the life force or pranic energy in man, which is the source of all power, all strength, all energy, all enthusiasm, ऑल डायनामिज्म. जो हम सक्रिय होते हैं, हमें पैशनेट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, डायनामिक होकर हम काम करते हैं, जिस फोर्स के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, वो ड्राइविंग फोर्स जो होता है, वो डायनामिक एनर्जी जो है, ये हमारे प्राणिक एनर्जी है. एंड इट इज द प्राणिक एनर्जी विच गिव्स द
effectuating force to our will and power and strength to realize our ideas in our inner and outer life. So this is what is the pranamaya kosha, the pranic energy that is operative and without which, and which is the foundation and without which nothing can move. No mind, nothing in this universe can move without this prana. And there's a beautiful story in the Upanishad where they say that when all the senses they started quarreling amongst others, so the Prajapati Brahma said that each one of you leave the body for 1 year and let's see whether the body is sustained without a single sense or not. So one by one, all the senses they departed, and then when they came back, they found that everything is moving smoothly. When the prana started moving out, everyone felt unconscious. So, without prana, nothing will move forward. So, after the pranamaya kosha, we have again the description of the manomaya kosha, the mental sheath. And this manas, again at present, in the human consciousness, as it is described, that manas is the prana sharira neta. It leads the prana and sharira. It is the master of prana and sharira. And this mind, again, when we contemplate on the Upanishad, we find that it is classified into 5 categories. The mind classified into 5 categories. 5 अलग अलग रूप है इसका: चित्त, मनस, बुद्धि, अहंकार and तेजस. Chitta, Manas, Buddhi, Ahankar, and Tejas. And it is necessary to understand these terminologies, ancient Indian terminologies, to know what the Indian psychology is. And these are some very foundational concepts of Indian psychology. Foundational concepts of Indian psychology. Chitta, as we find described in the Upanishads, it is the basic substratum of the human mental consciousness. It is perhaps that part of the human consciousness which provides the link and continuity with our past evolution. Because Chitta is the storehouse of all sanskaras. जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हमारे इंद्रियों से हम देखते हैं, ग्रहण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, फील करते हैं, आस्वादन करते हैं, तो ये सबका सबसे जो संस्कार पैदा होता है, तो वह संस्कार चित्त में रह जाता है. So चित्त contains all these impressions. It's called the sanskara in Indian psychology, of all experiences of our past evolution. And manas is the sensational mind. Actually, in a sense, that it is the consciousness behind all the sense organs. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो इंद्रियां होते हैं, ये इंद्रियों के पीछे जो चेतना है, वो मन है. तो it receives and responds to inputs transmitted through them. The manas है, इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन आता है, तो it receives and responds to the inputs transmitted through these indriyas. Buddhi is the intelligent will, which can think, reason, discriminate, judge, choose, apply the force of will, and persist in its choice. This is the work of the Buddhi. But again, the Buddhi is sometimes also used to refer to that faculty in human mind which is sensitive to higher values like truth, beauty, goodness. This is another function of Buddhi. Ahankar is the ego sense. So we have Chitta, Manas, Buddhi, and Ahankara is the ego sense, that which gives the sense of I and mine.
when it is animated with vital desire, when it is animated with the vital desire, becomes the uh, urge for personal possession and attachment, कि मैं ये रख लूं, ये मेरा है, इसके ऊपर किसी और का अधिकार नहीं। फिर उसको पकड़ के रखते हैं, स्टिकी बन जाते हैं, एडिक्टेड बन जाते हैं। बट ईगो, दिस अहंकार, is not only confined to mind, it pervades the entire human organism from body to mind. So body also has its own ego, the prana also has its own ego, the manas also is connected with ego. This ego at the outer consciousness of ours is the separative ego sense, which divides us, which creates this sense of you and me and he or she, all separation or fragmentation it creates. Tejas is another faculty. It means the light, the luster. And this is defined, it is a general, in general, it is the essential light of awareness inherent in the mind, most specifically in the inner luster or illumination, which emerges as a process of in the process of yoga. So it is ultimately when we follow a certain discipline to refine our body, refine our prana, refine our mind, then what happens? Like we see that light, everything becomes illuminated by that light. Everything becomes illuminated by that light. So similarly, इसकी जो ऊपर है, ये अन्नमय, प्राणमय और मनमय कोश से ऊपर जो है, जो हमारे विज्ञानमय कोश है, which is the link, which is beyond all minds. And again, when we come to say Sri Aurobindo has more elaborately explained and commented upon this Panchakosha, where one finds the various layers of the mind. He talks about the physical mind, he talks about the vital mind, the mental mind, reasoning mind, and then he goes more and more up to the illumined mind, higher mind, intuitive mind, over mind, and then comes to the super mind, which is the Vijnanamaya Chetana, which has the knowledge of Satchidananda and which also knows how to link the Aparardha with Parardha. And then we come to that Anandamaya Kosha, which includes all Sat, Chit, and Ananda. And this is how we find an elaborate description of the various layers of our existence, the various parts of our own being, and this gives a clear understanding, and this creates a basis for our understanding for the self knowledge, the Atma Jnana. एंड ये आत्मज्ञान से ही सब कुछ संभव होता है। इसीलिए प्राचीन युग में मुनि ऋषि लोग, जो सीकर्स लोग, जो डिसाइपल लोग होते हैं, तो ये यही मानकर चलते हैं, यही प्रश्न पूछते हैं। जैसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है उपनिषदों में, कस्मिन्नु खलु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हाउ डू आई अंडरस्टैंड, knowing which all can be known? This is the question. Kasmin vijnate sarvamidam vijnatam bhavati. Knowing which all can be known. And we find that everything, all knowledge exists within every one of us. And when we tap into that source knowledge, which is known as the Brahma Vidya, the Atma Jnana, then everything else in this universe we can understand. And for that purpose, we need to understand how do we operate. And then when we come to the Gita, which is the essence of all the Upanishads or the Vedic Upanishad teaching, this greater psychology which is given to us by our seers and sages of the Veda and Upanishad becomes more practically elaborated again in the Gita, which says that our entire being is divided into two. We all carry these two selves.
our outer self and our inner self. Our outer self is regulated by, because outer self also, like we have an outer mind, we have an outer physical, we have an outer vital, and that is regulated by our separative ego sense. So this separative ego sense attached to our physical, vital and mental, it creates separation and fragmentation. Our mind is divided, our vital is divided, our emotionally we are divided. In the physical consciousness also there is no unity. So we have again the greatest contribution of our seers and sages. We have been given a process, the process of yoga, by which we can tap into the infinite powers of ourselves, make ourselves free from the clutches of this separative ego sense, and then live within and grow from within. So living within and then operating from within is the ultimate result of the greater psychology which is given to us by our seers and sages. So with these words, I end my deliberation. सर, हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे शिक्षण अधिगम केंद्र की तरफ से हमारे प्रतिभागियों की तरफ से तथा मेरी तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद।